Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. I hope you enjoyed your, 3 days holidays, Friday, Saturday, and Sunday. So now again, welcome back, and let us straightway go to our point of discussion that we were discussing. We were discussing normalization. There we have discussed first normal form, second normal form, and third normal form. So now, and I told you कि किस किस समय में वो जरूरत पड़ता है, and they are all available in the LMS. Can you all log into LMS? Have you tried that? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, fine. Thank you. So now let us go back to, without wasting time, let us go back to our important discussion, that was normalization, and today we will see Boyce code chord normal form. Boyce chord normal form. So we call it in short, just a second, please let me connect my writing pad. Yeah, we call it B, C, N, F. And I told you the full form of this is Boyce chord normal form. Okay. And we have, say we have 1NF, then 2NF, then from here I can either go to 3NF or we can go to BCNF. तो ये ऐसा नहीं है कि 3NF के बाद BCNF आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. Right. Let me see some. Okay. So ऐसा कुछ नहीं है कि 3NF के बाद BCNF आएगा, but from here and here we can go to 4NF and then 5NF and so on. And I said कि majority of the real time problems they are settled within this part. बहुत few ही यहाँ तक जाता है और उसके आगे हम जाते नहीं है. Possibility होगा भी तो हम जाते नहीं है because it involves a very high mathematical complexity. This is now. Let us see Boyce chord normal form. You can just note down a few lines. You can just note down a few lines. B, C, and F. If a relation, you understand what is the meaning of relation? It is nothing but a table. If a relation is in second normal form, if a relation is in second normal form, and if we break this table, then the smaller tables are said to be in BCNF. In BCNF. ब्रैकेट में लिख लो, or we can say
or we can say a normalization. A normalization. Called BCNF is required. Okay. Now, to understand this, let us create a relation. So उसमें हम मान लेते हैं we have T code, we have department, we have head of the department, we have percent time. कहने टी कोड कहने का मतलब है ये टीचर का कोड है. तो अगर ऐसा है, if it is such that कि एक टीचर ऐसा है जैसे मेरा ही केस लो, आई टीच इन डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स, ऑल्सो आई टीच इन डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस. सो से आई टेक कि एक टीचर कोड एक डिपार्टमेंट में कितना समय देता है उसका एक चार्ट हम बनाना चाहते हैं. सो आई टेक टीचर कोड T1, इसका डिपार्टमेंट है फिजिक्स, इसका HOD है X और ये परसेंट टाइम दे रहा है से 50%. यही टीचर कोड T1 डिपार्टमेंट है कंप्यूटर जिसके HOD है से Y, यहां पे ये दे रहा है 30%. यही टीचर कोड T1 से इन केमिस्ट्री जिसके HOD है Z, यहां पे दे रहा है 20%. टीचर कोड T2 फिजिक्स में है जिसके HOD है X, he is giving 100%. टीचर कोड T3, अरे T2 दूसरा कोई डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता क्योंकि फिजिक्स में ही 100% पढ़ा रहा है. T3 ये कंप्यूटर साइंस में है जिसके HOD है Y, यहां पे ही इज गिविंग 80%. T3 जो है इट गोज टू जियोलॉजी डिपार्टमेंट, वहां के HOD है P, देयर ही गिव्स 20%. ओके. T4 ये केमिस्ट्री में है, इसके HOD है Z, यहां पे ये 100% टाइम दे रहा है. Now you tell me one thing, looking at this table, in order to identify a row uniquely, हमको क्या जानना जरूरत होगा? Tell me this. In order to identify a row uniquely, हमको क्या जानना जरूरत होगा so that I can identify a row? T code? Correct. खाली T code? T code with department. T code and department. ये अगर हम जानते हैं तो I can identify a row uniquely. T1 and physics, ये अगर हम बात करते हैं डेफिनेटली हम पता लगा लेंगे कि दिस इज यूनिक. T1 फिजिक्स में कितने देर तक है ये इसके अलावा कहीं पे नहीं होगा. T1 और फिजिक्स में हम दोबारा थोड़ी लिखेंगे कि माने डोंट राइट दिस, हम ये तो नहीं ना लिखेंगे फिर से कि T1 फिजिक्स ये केमिस्ट्री वाला नहीं है तो T1 फिजिक्स X और ये 20 ये वाला नहीं लिख के हम इसको दोबारा ऐसे थोड़ी लिखते हैं. एक ही बार फिजिक्स होगा तो एक ही बार एंट्री होगा. सो दैट इज व्हाई दिस इज काइंड ऑफ यूनिक. इफ आई नो द टीचर कोड एंड डिपार्टमेंट, so then that is unique. I can identify a row unique. किसी को और कुछ कहना है इसमें? किसी को anybody else कोई कंफ्यूजन है या कुछ और कहना है इसमें? कोई भी? So you agree to it? Teacher code and department जानेंगे तो I can identify a row uniquely. Is it clear? Agreed? Everybody? Yes, sir. Okay. So now I want to say कि अगर हम ये बताते हैं कि I know teacher code and HOD, क्या यूनिक होता या नहीं होता?
इफ आई नो, होता ना, नहीं होता या नहीं होता? होता। होता, करेक्ट। यही क्वेश्चन हम पूछ रहे थे, हम देख रहे थे कि कितना बच्चा लोग टर्मिनल ऑन करके जो है बिस्किट खा रहा है। तो दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग कि यू नो टीचर कोड एंड एचओडी भी अनदर पॉसिबल प्राइमरी की होगा। इट्स ए कॉम्पोजिट, किस तरह का की हुआ? कॉम्पोजिट प्राइमरी की, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स मोर देन वन एट्रीब्यूट। So you can see one thing, this is one key, okay, and this is one key. So anybody if you can read out कि BCNF का क्या हम लिखाए थे, हम तो कहीं देख के नहीं लिखा रहे तो इसलिए हम भूल गए कि बोले क्या थे एग्जैक्ट लाइन। Anybody if anyone can just read it out. So if a relation is in second normal form and the relation has more than one possible keys and the keys have a common attribute. Yes, बस। So the relation has more than one possible key. कहने का क्या मतलब हुआ? You say this is one key, मतलब primary key. This is one primary key. This is another primary key. So this relation has more than one primary key. ठीक है? Keys नहीं, key कर लो उसको. They have more than one primary key. हो गया? You can you agree to this? You understand this? ये रिलेशन में हम दो तरह का कॉम्पोजिट की बना सकते हैं, या तो टीचर कोड डिपार्टमेंट ले लें या टीचर कोड एचओडी ले लें। किसी को भी लेते हैं तो आई कैन आइडेंटिफाई अ रो यूनिकली। सो द रिलेशन हैज मोर देन वन पॉसिबल की एंड द कीज हैव अ कॉमन एट्रीब्यूट। दिस कॉमन एट्रीब्यूट टीचर कोड दोनों की में कॉमन है। टीचर कोड जो है ये दोनों केस में कॉमन है, चाहे टीचर कोड डिपार्टमेंट ले लें चाहे टीचर कोड एचओडी ले लें। So then I can break it into smaller table as T code, DPT, person time, या तो ये बनाए या ये बनाए, either or, इन दोनों में से कोई, टीचर कोड, एचओडी, पर्सन टाइम, कोई एक बनाना है हमको, either this or this, दोनों नहीं, not both। और एक दूसरा टेबल क्या बनेगा? डिपार्टमेंट और एचओडी। ये डेफिनेटली एक छोटा टेबल होगा। फिजिक्स तो x है, कंप्यूटर साइंस y है, डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, एंड केमिस्ट्री z है, जियोलॉजी p है। तो देयर इज नो डुप्लीकेशन। यहाँ पे बार बार कंप्यूटर y, फिजिक्स x, एक ही चीज डुप्लीकेशन हो रहा है। सो आई कैन मेक अ स्मॉलर टेबल where this I can avoid this duplication and when I join, अब या तो इसको बनाया और इसको बनाया, नहीं तो या तो हम ये बनाए और साथ में ये बनाए, either or, ठीक है। So then these tables are said to be in BCNF. These tables are said to be, कौन सा tables? या तो ये and ये, या this one and this one. These tables are said to be in BCNF. Okay. So this is what is your Boyce Codd normal form. Now we come to the last in the sequence, that is fourth normal form. Fourth normal form. Okay. 4NF. Now this 4NF basically depends on kind of cyclic dependency, यानी x डिपेंड कर रहा है y के ऊपर, y डिपेंड कर रहा है z के ऊपर, z डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। कुछ इस तरह का डिपेंडेंसी अगर हुआ तो दिस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी इज कॉल्ड साइक्लिक डिपेंडेंसी। साइक्लिक, तो साइक्लिक डिपेंडेंसी जहां हो रहा है, then a normalization called 4NF is required. Okay, या multi-valued dependency, या तो cyclic dependency बोलते हैं और we call it multi-valued dependency। ठीक है,
तो मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अगर होता है, इन दैट केस अ नॉर्मलाइजेशन कॉल्ड 4NF इज रिक्वायर्ड। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, सर्टेन बुक्स दे से कि दिस इज 5NF, बट वी से बिकॉज हम 5NF तक जाते ही नहीं है, वी से कि मल्टी वैल्यूड डिपेंडेंसी अगर है या साइक्लिक डिपेंडेंसी है, so then that is what is then a normalization called 4NF is required. So let us see कि what is this multi-valued dependency. ठीक है? Let us assume there are vendors. Vendors are there. तो वेंडर होगा तो इन लोग काहे के लिए बना हुआ है? They can supply items, and these items they supply in various departments. Okay. तो वेंडर है, वेंडर कैन सप्लाई आइटम्स एंड दीज आइटम्स दे कैन सप्लाई इन वेरियस डिपार्टमेंट्स। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, इसको जरा ध्यान से सुनना। वन वेंडर कैन सपोर्ट वन आइटम इन वन डिपार्टमेंट। अग्रीड? वन वेंडर कैन सपोर्ट वन आइटम इन वन डिपार्टमेंट। Okay. One vendor can supply many items in one department. One vendor can supply one item in one department. One vendor can supply many items in one department. कहने का मतलब ये one vendor can supply one item in many departments. I'm sorry, अभी I1 ही पे जा रहे थे। तो एक वन वेंडर, अच्छा इसको यहां लिख लेते हैं, कहीं पे लिख लो। वन वेंडर कैन सप्लाई वन आइटम टू वन डिपार्टमेंट। वन वेंडर कैन सप्लाई मेनी आइटम्स टू वन डिपार्टमेंट। वन वेंडर कैन सप्लाई वन आइटम टू मेनी डिपार्टमेंट्स। One vendor can supply many items to many departments. Okay. Similarly, one item can be purchased by one vendor for one department. One item can be purchased from many vendors for one department. One item can be purchased by one vendor for many departments. One item can be purchased by many vendors for many departments. You understand this case? Similarly, one department can purchase one item from one vendor. One department can purchase many items from one vendor. One department can purchase one item from many vendors. One department can purchase many items from many vendors. इस तरह का केस है। तो you can see now, तो this is now V1 अब सप्लाई कर रहा था, अब यहाँ पे V2 कर सकता है। V2 can sell also item I1 to D1. V2 can sell item I1 to D2. V2 can sell item I2 to D1. V3 can sell item I3 to D1. V3 can sell item I2 to D2. I can make this kind of a chart. So you can see this is nothing but, cyclic dependency. एक दूसरे पे depend कर रहा है. So these kind of dependency, this is what is called multi-valued dependency or cyclic dependency.
So I can make smaller tables like vendors, items, and another table like item, department. Vendor, item department. Or we can have कोई दो vendor department, item department, vendor department, item department. Either or, ये टेबल भी हम बना सकते हैं, ये दो या ये दो भी बना सकते हैं. वेंडर आइटम डिपार्टमेंट या वेंडर डिपार्टमेंट आइटम डिपार्टमेंट, या फिर दोनों में वेंडर कॉमन कर दें, वेंडर आइटम वेंडर डिपार्टमेंट, वेंडर आइटम या एंड वेंडर डिपार्टमेंट. तो इस तरह का हम कॉम्बिनेशन में आई कैन मेक टेबल्स, and these smaller tables are said to be in fourth normal form. So you can note down one line. You can note down one line. That one line is, if a relation is in second normal form or third normal form or in BCNF and there exists a cyclic dependency or a multi-valued dependency then a normalization called 4NF is required. Normalization called 4NF is required. And the smaller tables obtained after breaking the large table is said to be are said to be in fourth normal form. Give a blank and write. Give a change a line and write. Majority of the real life problems are settled within 4NF. And we don't prefer to go beyond it. Due to mathematical complexities involved. Okay, so then अच्छा एक तुम्हारे लिए हम होमवर्क दे रहे हैं, because इसके साथ they will at times ask you what is lossless
join. I told you the other day कि lossless join किसको बोलते हैं, कि जब हम तोड़ तो लिए हैं टेबल को, लेकिन उसके बाद जब हम जोड़ेंगे there should not be additional rows, जबरदस्ती अंडर बंडर रो नहीं आ जाए, additional rows, and also there should not be missing rows. Missing rows. तो जब हम join करेंगे तो हमको ये देखते हुए join करना होता है. So if that join gives me back the original table, then no additional row or no missing row, then that kind of join is called a lossless join. So you can get hold of certain books and find out, write a short note on this, because you get a long question on what is a normalization, explain its different forms, giving examples. That is the long question that we have already seen in these lectures. Okay. So now actually what we will do is I will go to something called relational algebra. We will study something called relational algebra. इसमें mathematics, ये mathematics जैसा algebra नहीं है, but we still follow certain rules. Relational algebra ये relations के ऊपर काम कर रहा है, that means tables के ऊपर ये काम कर रहा है. तो लेकिन इसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये SQL में घूम के आते हैं. उसके बाद I'll come back to this after a small part of SQL which is there in your course. उसको हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, और then we will again come back to relational algebra, because इसके बाद relational algebra, then transaction, then locking, and then there are complicated important chapters in RDBMS. SQL में हम जाते हैं. This is kind of your last chapter. So SQL is what? You know, it is structured query language. Structured query language. इसको हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं. दो पार्ट नहीं, हम इसको यहीं से वेरियस पार्ट में बांट देते हैं. We say we can have simple query language, we can have DDL, we can have DML, we can have DCL, we can have PL, SQL. तो SQL के अंदर ये सारा चीज आता है. Simple query means asking questions to the database and getting answers from there. DDL stands for data definition language, यानी certain commands जिनको यूज करके we create table, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं. All these सब के सब SQL ही है, लेकिन थोड़ा बांट दिया गया है, इसको अलग अलग कर दिया गया. DDL stands for data definition language, यानी वो सब कमांड है जिसको यूज करके हम टेबल बनाते हैं. DML is data manipulation language, यानी जब टेबल बन गया अब उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. Okay, I am changing certain conditions, certain values, etc. Now data control language, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. कंट्रोल करने का मतलब है ये डेटाबेस है, हम इसके यूजर हैं. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि ये बड़ा सिक्योर्ड है, कि हमको ये इतना जगह देगा कि सिर्फ इसको हम ही देख पाएंगे. यहाँ एक और यूजर है, ये ओरेकल के अंदर ये भी काम कर रहा है, लेकिन ये मेरा टेबल, मेरा बनाया हुआ कुछ काम को देख नहीं पाएगा. लेकिन हम अगर चाहें तो इसको परमिशन दे सकते हैं कि ए भाई तुम आओ, मेरा टेबल सबको देख सकते हो, एंड यू कैन वर्क ऑन माय टेबल्स आल्सो. तो इस तरह का जो परमिशन देना एक्सेट्रा है वो सब इसके अंदर आता है. DCL, वी विल स्टडी दीज अ बिट इफ टाइम परमिट्स. ये एक्चुअली इट इज देयर, ये सब तुम्हारे इसमें है SEC में, वेयर यू स्टडी PLSQL. बट आई थिंक प्रोबेबली IT स्टूडेंट्स दे डोंट स्टडी PLSQL, तो हम उनके लिए भी कुछ दूर तक कर सकते हैं इफ टाइम परमिट्स. PLSQL क्या है? इट इज द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज, यानी यहाँ पे हम ये सब तो हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें 3 लाइन 4 लाइन का कोड लिखते हैं, इसमें ये सब 5-6 लाइन का. लेकिन दिस इज वेयर वी कैन राइट प्रोग्राम्स. वी डेफिनेटली कैन राइट programs using this. We can write programs, we can write functions, we can write procedures, we can write triggers. Triggers बड़ा important चीज है, धीरे धीरे सीखेंगे हम लोग.
So what we want to do is we want to start with this query language. थोड़ा इसको सीख लें. इसको जानने से पहले समझाना आसान होगा अगर हम ये कर लें तो. SQL थोड़ा कर लें तो ये समझाना आसान होगा. अदरवाइज ऐसे भी हम समझा सकते थे, बट यू विल फाइंड इट इजियर. क्वेरी कर लेंगे, देन विल गो टू रिलेशनल अलजेब्रा. फिर बीच बीच में वापस आ जाएंगे DDL में, DML में, DCL में. ये सब हम करते रहेंगे बीच बीच में. These are all there in your lab. तो हम तुम्हारा लैब असाइनमेंट यू मे बी हैविंग विथ योर सिलेबस. उसके अलावा भी क्या है कि कुछ सोल्यूशन मटेरियल्स देंगे. Now, what you are supposed to do is first install Oracle. Install Oracle. Those who have laptop or a desktop, definitely they can install that. Akash or Ashish, he has already put you the version of 10G Express Edition. If you want, I can give you 11G Express Edition. ये इंस्टॉल करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. लेकिन इसको इंस्टॉल करने के बाद होता क्या है, हम जो पासवर्ड यूज कर रहे हैं, लाइक आई एम यूजिंग द टेबल, जो हम यूज कर रहे हैं, आई एम यूजिंग द यूजर नेम है स्कॉट एंड टाइगर. पासवर्ड उसका है टाइगर. ये कुछ चीज जान लो, यूजर नेम और ये है पासवर्ड. ये हमको बनाना पड़ा है. तो एज सुन एज यू मेक दिस ओरेकल, ठीक है, इंस्टॉल दिस ओरेकल, तो तुमसे पूछेगा कि भाई तुमको हम दे रहे हैं एक अकाउंट, बना बनाया दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सिस अकाउंट और सिस DBA अकाउंट. DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. जब इंस्टॉल कर रहे हैं उसी समय पूछेगा कि ये आपको दे रहे हैं, इसके लिए आप क्या, ये आपका यूजर नेम है, यूजर नेम, इसके लिए आप क्या पासवर्ड रखना चाहते हैं. तो यू गिव सम पासवर्ड, ओके, से XYZ0103#, इस तरह का एक पासवर्ड हम बना लें. तो नाउ वंस सब इंस्टॉलेशन हो गया, वंस यू इंस्टॉल इट, यू गेट दिस SQL प्रॉम्प्ट. ओके, यहां पे यू राइट कनेक्ट. तो ये तुमसे पूछेगा यूजर नेम, तो वहां पे यू गिव दिस नेम सिस DBA एंड पासवर्ड एंटर करेंगे यहां, तो इट विल आस्क फॉर योर पासवर्ड. तो देयर यू गिव दिस पासवर्ड, दिस वन. तो तब क्या हो गया, ये तुम्हारे लिए खुल जाएगा. यू गेट दिस बैक, यू गेट दिस SQL prompt बैक वेयर यू कैन डू योर प्रोग्रामिंग्स. लेकिन उसके पास ये स्कॉट टाइगर नहीं है. हम इसको बार बार, यू कैन मेक योर ओन, लेकिन हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि ये बहुत सारे में बाय डिफॉल्ट बना हुआ रहता है, तो इसको हम लोग भी बना लेते हैं. तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, इतना सारा कर लेने के बाद what you do is you get SQL prompt. Here you write create user Scott, small letters Scott, एंटर कर दें या उसी लाइन में लिख सकते हैं identified by tiger सेमीकोलन. तो ये बोल देगा वन यूजर क्रिएटेड. ये ठीक से होगा तो बोलेगा वन यूजर क्रिएटेड. ओके, सो नेक्स्ट टाइम, और देन व्हाट यू कैन डू इज SQL, यू कैन स्टिल अगेन राइट कनेक्ट. यू कैन बाहर भी आ जा सकते हो बाय राइटिंग SQL एग्जिट या क्विट, जो भी देख लेना, फिर बाहर आ जाएगा. देयर यू राइट कनेक्ट. अब जो तुम्हारे पास SQL आएगा उसमें ये तुमसे यूजर नेम पूछेगा, यूजर नेम. देयर यू गिव स्कॉट एंड यू गिव, एंटर करोगे तो पूछेगा पासवर्ड. देयर यू राइट टाइगर, एंटर, फिर से SQL प्रॉम्प्ट आ जाएगा तुम्हारे पास. दिस इज दोज हु आर इंस्टॉलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. अब SQL प्रॉम्प्ट आ गया, तो इसके अंदर यूजुअली ये 10G 11G में ये सब बनाया हुआ नहीं है. हम लोग 3 टेबल यूज करेंगे. One is called EMP table, another one is called DEPT table, another table is called SAL grade table. ये टेबल हम लोग तीनों यूज करेंगे when I'll be working with the query part of SQL, जो हम आपको बताएं वो हम जब यूज करेंगे, I will be using these 3 tables. तो ये टेबल, एम्प्लॉय टेबल, ये दिमाग में एकदम से रट लेना है.
एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या है, उसका जो कॉलम नेम है एकदम वैसा के वैसा याद रखना है. It will have EMPNO, E-name, job, sal, hire date, MGR, commission, डिपार्टमेंट नंबर. इतना सारा एट्रीब्यूट उसमें बना हुआ है. एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, साल, हायर डेट, एमजीआर, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर. इसको याद रखना एकदम जैसे लिखा हुआ है वही. एमजीआर के जगह हम मैनेजर लिखेंगे तो उठा के फेंक देगा. कमीशन COMM ही लिखना है. डिपार्टमेंट नंबर DPTNO, इसीलिए इसको याद रखना है. डिपार्टमेंट टेबल जो है उसमें बना हुआ है DPTNO. हम उस दिन दिखा रहे थे कि इसी का पार्ट है. DPTNO, डीनेम एंड लोकेशन. और एक सैल ग्रेड टेबल है जिसमें है लो सैल, हाई सैल, ग्रेड. अब ग्रेड आगे लिखा हुआ है, लो साल पीछे लिखा हुआ है, इससे कुछ आता जाता नहीं है, बट ये है एट्रीब्यूट्स. ठीक है, तो ये 3 टेबल हम जरूर से यूज करेंगे. तो कहने का मतलब है कि हमारा 11G या 10G में ये बनाया हुआ नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे इसको बनाएं और इसमें डेटा डालें. सो यू रेफर टू दिस साइट. यू सी, you refer to this site, Oracle Live SQL. You can see script EMP and actually हुआ क्या था, हम यहाँ पे लिखे थे गूगल में script to create EMP and department table. ये वाला लाइन हम लिखे थे यहाँ पे. Okay, so this was the line which I wrote गूगल में. तो गूगल में लिखे थे script to create EMP and department table. तो उससे जो पहला आया livesql.oracle.com apex livesql फाइल, ये वाला फाइल आ गया. इसको खोलने से आई गेट दिस. यहां से तुमको कुछ नहीं करना है. यू नो व्हाट यू डू इज यू कॉपी दिस, ऐसे उठा के ले जाओ, प्रेस कॉपी, कॉपी. ओके, और एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में ले जाके यू हैव टू पेस्ट दिस. यहां ले जाके यू हैव टू जस्ट पेस्ट दिस यहाँ पे. So, और कुछ नहीं करना है. दैट विल बी ऑटोमेटिकली क्रिएटेड, वो बनते चला जाएगा. तो यू हैव टू कट एंड पेस्ट. तो डिपार्टमेंट टेबल बन गया. जहां बनेगा बोलेगा टेबल क्रिएटेड, फिर एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आएगा, वहां पे इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं. ओके, अब जो है ये पूरा जो मटेरियल है इसको यू कैन सिलेक्ट एट वन गो. एकदम यहां से उठा के ले जाओ. ओके, बट बेटर तरीका, यहां से उठाने से ये सब उठ जा रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए. तो यू कीप ऑन टेकिंग दिस. ठीक है, ये डिपार्टमेंट टेबल का डेटा है. यू सी, सब डिपार्टमेंट टेबल में है. इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट, इसमें वैल्यू ये डालते चला जा रहा है. ओके, और उसके बाद ये सब है एम्प्लॉय टेबल में डालने के लिए. खाली कॉपी करो, पेस्ट करते चले जाओ, कॉपी करो, पेस्ट करते हुए चले जाओ. सो इवेंचुअली देयर विल बी 14 रोज. ओके, 14 रोज ये तुमको बताएगा 14 रोज. सो दिस इज हाउ यू विल क्रिएट द टेबल्स इन SQL. जब तुम्हारे पास बन जाएगा तो यू कैन राइट दिस कमांड, select asterisk from tab. टैब इसके अंदर हम नहीं बनाते. टैब इसके अंदर का एक टेबल है, जो हम जितना भी टेबल बनाएंगे उसका हिस्ट्री वो रखता है, काइंड ऑफ यू नो कंटेंट टाइप का. तो इसको अगर करते गिव अ सेमीकोलन तो यू गेट दिस आंसर. यू सी, हम यहाँ पे 3 बना के रखे हुए हैं, 3 टेबल बना के रखे हुए हैं. डिपार्टमेंट टेबल, EMP टेबल और सैल ग्रेड टेबल. तो ये 3 टेबल मेरे पास बना हुआ है. अगर नहीं बना हुआ है तो हमको बना लेना होगा, बिकॉज हम इसी को यूज करेंगे हर बार. ओके, सो नाउ लेट अस कम बैक टू आवर दिस व्हाटसोएवर वी वर स्टडीइंग. इतना सारा काम कर लिए, ये 3 टेबल बना लिए फ्रॉम द वेबसाइट आई टोल्ड यू. कट करो, पेस्ट करते चले जाओ, बनते चला जाएगा, बाद में सीखेंगे हम लोग. नाउ वी कम बैक टू दिस पार्ट. तो यहां जब हम आ रहे हैं तो हम बोले कि लेट अस स्टार्ट राइटिंग आवर क्वेरी स्टेटमेंट.
क्वेरी स्टेटमेंट शुरू होता है, द स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल। ये यहाँ एसक्यूएल प्रॉम्प्ट में हम लिखते हैं, इट इज सिलेक्ट, ओके, कॉलम और कॉलम्स फ्रॉम टेबल or tables, followed by a semicolon. This is a line editor. This SQL is a line editor. तुम अगर चाहो तो you could have written like this also. Select column or columns from table or tables. ये भी हम लिख सकते हैं. Okay, sorry, not this one. So, but the better way of writing is we write it in different lines so that we also understand. अब इस लाइन में आके तुम अगर कोई गलती कर दिए यहाँ पे कि पता लगा कि यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक किए थे, you cannot go back to the previous line. नहीं जा सकते. This is a line editor. Once you change the line, you cannot go back to the previous line. आदत पड़ जाएगा. दिस मीन्स कोई भी एसक्यूएल स्टेटमेंट के अगेंस्ट में सेमीकोलन हमको देना पड़ेगा, बिकॉज ये हमको बताता है दैट इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट और एग्जीक्यूट करो. ओके, अगर ये लाइन नहीं देते, जैसे यहां पे सेमीकोलन नहीं दिए थे, तो सी क्या होगा. लेट अस शो यू हियर. आई राइट सिलेक्ट, ओके, कॉलम और कॉलम नेम. तो कॉलम नेम हम बताए थे, हमको जो लिखना होगा कॉलम नेम, ये EMPNO ई नेम, यही लिखना होगा. यहाँ पे अगर हम ये लिख देते हैं सिलेक्ट एम्प्लॉई फ्रॉम EMP, यू सी व्हाट इट विल गिव. बोलेगा कि नहीं है भाई, इनवैलिड आइडेंटिफायर. तो जैसा लिखा हुआ है मेरे मर्जी से नहीं चलने वाला है. तो आई राइट सिलेक्ट EMPNO, ओके, लिख दिए, यहीं पे लिख रहे हैं फ्रॉम EMP, सेमीकोलन दिए. सेमीकोलन नहीं देंगे तो क्या होगा, यहां आ गया. डोंट पैनिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां सेमीकोलन दे देंगे. कहने का मतलब हम लिख चुके भाई, नाउ यू एग्जीक्यूट कर दिया. एम्प्लॉय नंबर जितना था सब हमको दिखा दिया. हम अगर ऐसा करते हैं, सिलेक्ट EMPNO, ठीक है, अब एंटर दबाएं, फ्रॉम EMP, ओके, सेमीकोलन is the same thing, but the better way of writing is in these two rows. Okay, select columns from tables. तो यानी टेबल बोल रहा है, मतलब टेबल का नाम हमसे पूछ रहा है कि व्हाट टेबल आई वांट टू यूज. सो दैट इज व्हाट इज माय टेबल नेम. तो हम कॉलम या कॉलम्स फ्रॉम टेबल्स, इतना सारा, इतना एक छोटा सा स्टेटमेंट में जो भी उस टेबल के अंदर डाला हुआ है सब उठ के आ जाएगा. ये सी प्रोग्राम होता तो अभी बड़ा सा एक प्रोग्राम लिखना होता कि भाई ये फाइल ओपन करो, यहां से इस वेरिएबल में लाओ, उस वेरिएबल को प्रिंट करो, वगैरह वगैरह. बट इट इज दैट सिंपल. सो अब हम लोग कैसे लिखते हैं, आई टोल्ड यू सेमीकोलन कैसे यूज कर रहे हैं, वन लाइन या सिंगल लाइन. अब द फर्स्ट थिंग दैट आई यूज इज, हम नहीं जानते भाई कि एम्प्लॉय टेबल के अंदर क्या क्या कॉलम हेडिंग है. तुम पूछ ही सकते हो हमसे कि सर हमको तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है, कैसे आप सिलेक्ट EMPNO लिख दिए, हमको नहीं पता है. सो वी राइट दिस वे, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम EMP. Asterisk is called, this is called a wild card. This is called a wild card, and it also means everything. Everything. At times it is also means all rows, all row. Okay. So this is what is asterisk. तो जब हम ये लिखते हैं तो it will show you everything. So I write here select asterisk from EMP semicolon. See, I have made a mistake. Now you see, I have intentionally
मेड ए मिस्टेक ऐसा नहीं है, गलती से हमसे मिस्टेक हो गई, हम ये लिख दिए। तो यू कैन सी प्रॉब्लम क्या हुआ, बोला कि ये तो गलत हो गया। तो नाउ अच्छा, एक और गलती कैसे कर सकते हैं हम दिखा रहे हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी, हम जान रहे हैं कि ये गलत है, तो चूंकि इसी लाइन में हम हैं तो हम इसको ऐसे मिटा के ठीक कर सकते हैं। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी, ये हम ऐसे ठीक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। लेकिन फिर यहाँ फ्रॉम है, तो फ्रॉम अगर है तो फिर आई कैन गो बैक, आई कैन क्लिक दिस फ्रॉम ईएमपी, ओके, दिस इज ऑल राइट। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं, सिलेक्ट एस्ट्रिक्स, एंटर दबा दी, यू सी बोला कि पहले ही ये खत्म हो गया, गॉन, रेस्ट ऑफ द लाइन इग्नोर्ड। सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम, एंटर दबा दिए, ईएमपीडी, नहीं हुआ, टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। तो अब तो बड़ा परेशानी हो गया। मान लेते हैं ये क्वेरी हम तो एक छोटा सा लिखे हुए हैं यहाँ पे कि सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपीडी लिख दे, छोटा सा। एक बड़ा सा अगर हम क्वेरी लिखे होते तो फिर से टाइप करें इसको, तो आंसर इज नो, फिर से हम नहीं टाइप करेंगे। तो व्हाट यू डू इज यू प्रेस हियर ईडी, दैट मींस हम चाहते हैं कि एडिटर इसका आ जाए मेरे पास। ईडी जहां किए, आई प्रेस एंटर, सी व्हाट हैपेंस। सी हियर नोटपैड खुल गया और यहां पे ये चीज आ गया। हियर यू डू इज ईएमपीडी को ठीक कर देते हैं, यहां ईएमपी कर दिए, करेक्ट कर दी, करेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दिए, सेव एज नहीं, सेव। ये बफर फाइल है, यू कैन सी ऊपर ये लिख रहा है, यू कैन सी हियर इट इज राइटिंग *AFIEDT.BUF। इसको हमको अलग कोई सेव एज नहीं करना है, यू जस्ट सेव, और नहीं तो Alt F और X सीधा दबाएंगे तो बोलेगा सेव करें, तो हम बोले हाँ भाई सेव कर दो, सेव हो गया। तो क्या हुआ, ये बफर में लिखा गया ये फाइल, हमको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ा, खाली सुधार दिए वहां, नोटपैड है, कुछ भी कर सकते। अब इसको चलाएं कैसे, तो चलाने के लिए भी प्रेस /। ये जो स्लैश है इसका मतलब है कि जो भी फाइल बफर में है उसको एग्जीक्यूट करो। तो अभी कौन सा फाइल बफर में रहता है, जो फाइल लास्ट में हम लिखे हैं, दैट फाइल इज इन बफर। तो लास्ट में हम यही वाला लिखे थे, ये सिलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम वाला, यही वाला, और उसको हम बफर में करेक्ट करके सेव कर दिए, तो दैट इज देयर, ठीक है। लेकिन इसमें देखो ईएमपी के बाद आई हैव करेक्टेड दिस डी पार्ट, और जब स्लैश चलाएं तो हमको दोबारा क्वेरी नहीं लिखना पड़ा, बफर का फाइल जो करेक्ट हुआ था वही फाइल यहाँ पे रन हो गया, एंड आई गेट टू सी द एंटायर ईएमपी टेबल। सो व्हाट आई वांटेड टू डू वाज सेलेक्ट एस्ट्रिक्स फ्रॉम ईएमपी। इससे यू कैन सी कि क्या क्या कॉलम नेम्स है, एम्प्लॉय नेम, number, name, job, MGR, hire date, sal, commission, department number. So these are the values which I told you, you need to remember. Similarly, select asterisks from EMP, from DPT. तो इससे हमको पता लग जाएगा इसके अंदर क्या है। तो asterisk means everything, हम जब जानते नहीं है तो हम asterisk बोल देते हैं, that is a wild card. अब हम बोले थे कि मेरा टेक्निक क्या है, select column या columns from table या tables, okay. So what we do is we can write like this, we can write the query like this. Now select EMPNO comma ename comma job comma sal from EMP। हमको इतना ही देखना था, पूरा नहीं देखना है। तो हमको जो जो देखना था उनका नाम हम लिखे, बट यू सी दीज नेम्स, ये जो लिखा हुआ है, दीज नेम्स शुड बी एग्जैक्टली द सेम एज इज गिवन इन दिस टेबल।
हम वही लिखे हैं, EMPNO लिखे हैं, E-name लिखे हैं, job लिखे हैं, sal लिखे हैं, then it shows me those values. हमको जो भी चाहिए हम वहां से निकाल ले सकते हैं. Select, okay, I write job, hire date from PMP. तो खाली हमको जॉब एंड हायर डेट दिखा रहा है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक एनी कॉम्बिनेशन. तुमको जैसे भी देखना है, जो भी देखना है, 2 देखना है, 5 देखना है, 7 देखना है, जैसे देखना है यू कैन सी. इसको ऐसे ऑर्डर में नहीं लिखना है. यू कैन सी सिलेक्ट, आई एम राइटिंग जॉब, कॉमा, E-name, कॉमा, हायर डेट, कॉमा, EMPNO from EMP. जैसे हम लिखे तो वैसे ये दिखाएगा जॉब, E-name, हायर डेट, एम्प्लॉय नंबर. यू सी. और ये वाला कहीं सेव नहीं हो रहा है, ये सिर्फ हमको दिखा रहा है. दिखा के डेटाबेस में कोई चेंज नहीं हो रहा. हम जो इसको इतना 4 चीज लाने बोले तो ये सिर्फ हमको इतना ही भर दिखाया. क्या आप देख लीजिए, आप हमको क्वेरी किए थे ना कि इतना हमको दिखाओ, सिलेक्ट दिस फ्रॉम EMP, हम तुमको दिखा देते. So this is what is the called query. You are asking question and it is giving you answer. So this is what I said we call query. So query is important too. Is select is a keyword, from is a keyword. तो हम आज के लिए सिर्फ 2 चीज सीखे कि क्वेरी करने के लिए एक तो हमारे पास वो टेबल होना चाहिए जी, EMP, DPT एंड सेल ग्रेड. ये हम यूज करेंगे ऑल द टाइम. आई टोल्ड यू हाउ टू create these tables. Okay, Scott Tiger कैसे बनाएंगे वो भी I told you. You can refer to other scripts also. दुनिया का once you learn, there are so many बना बनाया scripts दिया हुआ है in these sites. You can take the help of these sites. You can see scripts. See, these many scripts are there. बना बनाया sample SQL matrix report कैसे क्या कर रहे हैं, general PL SQL script, DBA script, management script, कुछ भी. with the orafaq.com wiki scripts, this is the site address. लिख लोगे ना Oracle scripts तो Google will give you all this. Okay, so then the 2 important things query के लिए है select from. So before I stop today's class, let me tell you query के लिए the syntax for any query is actually SQL prompt में हम लिखते हैं select column या columns from table or tables where condition. But this one is not mandatory. इसीलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं followed by semicolon. लेकिन ये 2 मेरे लिए मैंडेटरी स्टेटमेंट है. दिस इज नॉट कंपल्सरी. व्हेन रिक्वायर वी कैन राइट दिस, जबकि हम कंडीशन में जाएंगे. तो हमने आज खाली इतना सीखा कि सिलेक्ट में हम क्या कॉलम्स कर सकते हैं. तो फर्स्ट यू ट्राई टू इंस्टॉल ओरेकल, उसके बाद स्कॉट टाइगर बना लो. बना लेने के बाद देन व्हाट यू डू इज यू क्रिएट दिस टेबल्स फ्रॉम दो स्क्रिप्ट्स, रन दिस सिंपल सिलेक्ट, and then we will do next tomorrow's class, because I just want to do a few things before I go to that relational algebra. Okay, thank you very much. Thank you for this patient hearing that you have given. So, and any doubts or any difficulty that you are facing? Anyone? Is it okay? All right, you can understand whatsoever is being taught to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, Kriti. Okay, Sanidhya Shubham, correct. Thank you very much. So let me wind up today's class. See you tomorrow.